آج ملک بھر میں جہاں لوگ اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں عیدی اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ شہری بھی اپنوں کو یاد کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میر کیریو سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج پورے ملک میں جو ہے عید الاضحیٰ جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوشی سے عید منا رہے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں اولڈ ایج ہوم میں بھی عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر جو بزرگ شہری موجود ہیں، وہ جو اپنوں سے دور ہیں، وہ بھی یہاں پر عید منا رہے ہیں اور اپنوں کو یاد کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں کیسے رہ رہے ہیں، ان کی کیسی زندگی گزر رہی ہے، اور عید کا دن ہے اور عید کے دن پر وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اپنوں کو یاد کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک آپ کو بھی خیر مبارک جناب، بہت بہت مبارک۔ عید کا دن ہے اور کیا کہنا چاہیں گے، آپ کی عید کیسی گزری اور کیا اپنوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عید ماشاءاللہ بہت اچھی گزری، سمجھے گزر رہی ہے، ابھی تو سمجھے فرسٹ ڈے ہے اور ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے نماز پڑھ کے آنے کے بعد سوئیاں کھائی ہیں، سمجھے چائے بھی تھی۔ میٹھے میں کیا کھایا؟ میں سوئیاں کھائی ہیں۔ ہاں سوئیاں، ہمیں تو نہیں کھلائی آپ نے۔ آپ ٹائم سے تشریف نہیں لے کر آئے، بس صرف اتنی بھی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ جی بالکل، یہاں پر جو بزرگ شہری موجود ہے، یہاں عید منا رہے ہیں۔ ہم ایک اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، عید مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ کیسی گزری عید آج آپ کی؟ آج عید گزر رہی ہے، بس یہ دو زندگی کے دن ہے، گزارنے ہیں جی، کیا کریں یہاں، اللہ کی ذات کے سوا تو کچھ نہیں، سمجھے صحیح۔ آپ کیا آج میٹھے میں کھایا آپ نے، کیا پکایا ہے؟ کچھ نہیں، وہ پھینی کسی نے لیا کے دی تھی تو وہ کھائی، پھینی ہے اور چائے، بس جناب۔ سب کوئی آ جاتا ہے تو لیتا، ورنہ یہاں تو ابھی 12-1 بجے بھی دال آئے گی، سمجھے نہیں، کیا کریں جی، زندگی گزارنی بابا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک۔ وعلیکم السلام، عید مبارک آپ کو بھی۔ کیسی گزر رہی عید آج پوری ملک میں عید منائی جا رہی ہے؟ جی اب پورے ملک میں عید منائی جا رہی ہے، ہم تو یوں سمجھ لیں بس زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ کیسے گزر رہے ہیں زندگی کے دن؟ اچھے گزر رہے ہیں، ادارے والوں کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کیا آپ کو دیا جاتا ہے؟ کھانا وغیرہ صحیح دیا جاتا ہے، ٹائم پر دیا جاتا ہے؟ جی ہاں، ہمیں کھانا سراب گوٹ سے آتا ہے اور ہمیں ہر چیز ٹائم سے ملتی ہے۔ صبح کا ناشتہ آتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا آتا ہے، پھر رات کا کھانا آتا ہے، ہماری ضروریات کی ہر چیز ہمیں دی جاتی ہے۔ اور آج چونکہ بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ محسوس تو بہت کچھ کر رہے ہیں، اپنوں کی یاد بہت آ رہی ہے، مگر کر کچھ نہیں سکتے۔ افسوس تو ہے، مگر آپ کے کون ہیں؟ اپنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں؟ کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے ان کو عید مبارک کہہ دیں۔ دیکھیے، میرا تو پورا خاندان ادھر ہی ہے، گاؤں میں بھی ہے، مگر کیا پوچھتے نہیں ہیں، جیسے بڈھے کو بیکار چیز کو گھر سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ایسے کر دیا۔ جی بالکل، یہاں کراچی کا جو ایدھی اوم ہے، یہاں پر جو ہے لوگ یہاں پر بھی عید منا رہے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے بزرگ شہری موجود ہیں، عید منا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنوں کی یاد آتی ہے لیکن مجبوری ہے، اپنوں سے دور ہے، لیکن جو بھی ہیں ہم یہاں خوش ہیں، خوشی سے عید منا رہے ہیں۔ میٹھے میں سوئیاں کھائی ہیں اور یہاں جو بھی آتا ہے یقیناً اپنے ملنے بھی آتے ہیں، کوئی نہیں بھی ملنے آتا ہے، لیکن ہم اپنوں کو یاد کرتے ہیں اور زندگی کے دن گزر رہے ہیں، جیسے تیسے زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ جی اب آپ کو بتائیں، عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر وکلا برادری بھی پیش وکیلوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے عید کی خوشیاں عزیز و اقارب کے ساتھ منائی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد۔ جی بالکل، جیسے آج عید الاضحیٰ بڑی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے، جو سارا سال کورٹ میں بزی رہتے ہیں وہ کیسے قربانی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید دانش علی، ان سے بات کرتے ہیں۔ دانش صاحب بتائیے گا، وکالت شعبہ پہ قربانی کس طریقے سے اس کو فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں عید کو؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جس طرح سے جو ہے لوگ پولیٹیشینز بھی ہو گئے، کرکٹرز بھی ہو گئے، وکیل بھی ہو گئے، ہم سب جو ہے وہ عید الاضحیٰ کو بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ منائی جاتی ہے۔ ہمارے بھی یہی سسٹم تھا جی، بچے شور کر رہے تھے کہ جی قربانی کا جانور لے کر آئیں، پھر وہ قربانی کا جانور لائے۔ اپنی اتنی مصروفیات زندگی میں سے ہم نے تھوڑا بہت ٹائم نکال
के जो है वो बच्चों के साथ भी रात के अंदर जो एक जानवर की देखभाल भी करी। और उसके बाद आज कुर्बानी का सिलसिला आपने देखा है कि जिस तरह से कुर्बानी सुबह से हम मसरूफ़ हैं और हमारे घर में माशाल्लाह मेहमान भी आए हुए हैं, यहाँ पे रौनक भी लगी हुई है सारे कुर्बानी के लिए। जो जिस तरह से दूसरे लोग अपने अपने शोबों के अंदर जो है वो काम करते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है बच्चों के लिए निकालते हैं, आज हमने भी जो है ईद को इसी तरह अपने बच्चों के साथ एंजॉय किया है, वकालत से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा अपनी जो है मसरूफियात से हट के बच्चों के साथ टाइम दिया है। तो यही खुशियाँ ईद की जो हम इसको अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। तो इस ईद पर कोई पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? जी मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तान के लोगों को, जी वो मायूस ना हो और इंशाअल्लाह जो है पाकिस्तान एक मरतबा फिर तरक्की करेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमारा मुल्क इसी तरह तरक्की करे और हम आपस में जितने भी जो हैं पेशावर हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं वो सब मिलजुल के इस मुल्क की खिदमत करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि वकालत तो चलती रहती है, काम तो होता रहता है, लेकिन जब ये त्यौहार आते हैं जैसे तो इसमें अपनी फैमिली, अपने बच्चों को टाइम देते हैं। जबकि उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि हम जितने भी पेशावर लोग हैं, हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन्हें अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जी। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखियत अतीकुर रमैती ने ईद उल अज़हा अपनी रहायशगाह पर मेहमानों के हमरा मनाई। उन्होंने बच्चों में ईदी भी तकसीम की। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रमैती और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। बखीत अतीक बच्चों में घुल मिल गए, उन्होंने ईदी भी तकसीम की। कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रमैती की जानिब से मेहमानों की तवाज़े अरब के रिवायती मशहूर कहवे से की गई। खाने में मेहमानों को अरब की सकाफती डिश मंदी भी पेश की गई। बखीत अतीक का कहना था कि ईद के मौका पर पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करे, आवाम खुशहाल हों। ईद अपनों में घुलने मिलने का ज़रिया होती है। ईद उल अज़हा हम सबको कुर्बानी और इसार का सबक देता है। अब आपको बताएं, कसाईयों की तरह सब्ज़ी फरोशों ने भी मनमानियाँ शुरू कर दी। ईद उल अज़हा के मौका पर सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। टमाटर, लीमू, हरी मिर्च और दीगर सब्जियों की कीमतें भी अचानक इजाफा कर दिया गया। देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई की रफ्तार कम ना हो सकी, ईद उल अजहा पर भी महंगाई के वार। सब्जियां हुई शहरियों के बस से बाहर। टमाटर, लीमू, हरी मिर्च और दीगर सब्जियों की कीमतों में अचानक इजाफा। 80 रुपए वाला टमाटर 200 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। प्याज 100 रुपए किलो से बढ़कर 150 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लीमू की कीमत 800 रुपए फी किलो तक वसूल। हरी मिर्च की कीमत 300 रुपए किलो तक पहुँच चुकी है। अदरक, लहसुन, धनिया, कच्चा पपीता और दीगर सब्जियां भी महंगी कर दी गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम परेशान हो गए। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया गया। बस ये टमाटर वगैरह बढ़ गया है। टमाटर, धनिया, मिर्ची डबल ट्रिपल रेट हो गए हैं। 2-3 दिन पहले 60 रुपए किलो था, कल 200 रुपए किलो बिका है। थोड़ा देखें गरीबों को भी यार, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो 250 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं, ये भी किसको बोले, किससे गिलवा शिकवा करें। गवर्नमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस लोगों का काम है ना महंगी करने का। हर कोई बोलता है गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट सही है, लेकिन ये लोग गलत है ना। सब्जी फरोश बोले, मंडी से सब्जियां महंगी मिल रही हैं, सस्ती फरोख्त करके अपना नुकसान नहीं कर सकते। जैसे कि 1200 और 1300 की पेटी आने वाली 2600 रुपए की पेटी हो गई है। 2600 2700 रुपए की पेटी आती है, तो सारा महंगाई तो बड़ी मंडी से होता है। अभी छोटे मोटे लाते हैं माल, यहाँ पर बेचते हैं, इसका स्टॉक भी नहीं कर सकते। जैसे पीछे जमा करके रख दिया हो, फिर वो बाद में बेचेंगे, ऐसा भी नहीं है, टमाटर सड़ जाता है। शहरियों का कहना है कि ईद का फायदा उठाकर मुनाफाखोरों ने मनमाने रेट कर दिए हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ईद कुर्बा पर मजहबी जमातों की जानिब से खाले जमा करने का सिलसिला जारी रहा। पहले रोज़ दावत इस्लामी की जानिब से शहर भर में पॉइंट्स बनाए गए, जहां से खालों की कलेक्शन करके मरकज़े सहराए मदीना में भिजवाई गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। जी आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ईद उल अज़हा के पहले रोज़ जो है सबसे पहला मरहला नमाज और फिर उसके बाद जो है कुर्बानी का जो सिलसिला शुरू हुआ। और कुर्बानी का सिलसिला शुरू होने के बाद जो जानवरों की खालें हैं उनके जो है शहर भर में मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है वो खाले जमा होने के बाद जो है वो फिर आगे की जानिब जाती हैं। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ दावत इस्लामी के जो है वो एक पॉइंट पर, जहाँ पर खाले जमा होने के बाद जो है वो इनके मरकज़ सराय मदीना जाती हैं। और यहाँ पर न्यू कराची टाउन में मौजूद हूँ। न्यू कराची टाउन में कितने मकामात बनाए गए हैं दावत इस्लामी की जानिब से, कहाँ से जो है वो खाले जो है वहाँ पर जमा होती हैं और उसके बाद इसका क्या अमल होता है, उसके हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम तारी साहब, इनसे तफसीलात। सर मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं इन तमाम मामलात को, खालों के ट्रक भी मौजूद है यहाँ पर, खाले जमा की जा रही है, तो ये खाले जो है जमा होने के बाद
किन 3 मकामात से आ रही हैं न्यू कराची टाउन के, और जो है कब तक ये सिलसिला ईद के तीनों दिन तक जारी रहता है, और फिर उसके बाद इसका आगे का क्या प्रोसेस होता है? असल में हमारे यहाँ न्यू कराची टाउन में 3 दिन तक जो है इज्तिमाई कुर्बानी भी होती है और कुर्बानी खाले जमा की जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 मकामात हैं, एक गोदरा मलसा और एक अहमद रज़ा मस्जिद जामिअतुल मदीना और एक फैज़ मदीना न्यू कराची। इन 3 मकामात पर जो है कुर्बानी खाले जमा होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सहराए मदीना टूल प्लाज़ा पर ये खाले जाती है हमारी, और तीनों दिन ये सिलसिला जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची बसें आती है, लेकिन हमारा न्यू कराची टाउन का फ़िलहाल ये है सिलसिला कि हमारे 3 मकामात से खाले जमा होती हैं और सहराए मदीना डायरेक्ट हम भेजते हैं। ये ट्रक इस तरह के ट्रक हैं, हमारे 10 ट्रक हमने करे हुए हैं। ये 10 ट्रक इंशाल्लाह मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ औकात में जो है कम से कम 2-3 चक्कर लगाते हैं ये। साहब ये भी बताइएगा, न्यू कराची टाउन का आपने जैसे बताया कि शहर के जितने भी टाउन्स हैं जहाँ दावत इस्लामी के लोग मौजूद हैं और खाले जमा करने के बाद जो है बेचते हैं, तो तमाम खाले सराई जो आपका मरकज़ है वहीं जाती है, या फैज़ान मदीना में भी जमा होने के बाद फैज़ान मदीना से भी फिर आगे रवाना होती है? सहरा मदीना का मरकज़ हमारा है खालों का, और एक कोरंगी है, कोरंगी भी जाती है और फैज़ान मदीना जाती नहीं है। फैज़ान मदीना से भी जो खाले जमा होती है वो कोरंगी या फिर सहरा मदीना जाती है। 2 मकामात हैं हमारे पूरे कराची भर के, इन 2 मकामात में खाले जमा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद हैं सलीम अत्तारी साहब, जिनका ये कहना है कि सराय मदीना इनका मेन मरकज़ है, जहाँ पर ना सिर्फ न्यू कराची टाउन बल्कि कराची के जितने भी टाउन्स हैं वहाँ से दावत इस्लामी के जिन जिन इलाकों में पॉइंट्स मौजूद हैं वहाँ पर लोग आते हैं, अपनी जो जानवर कुर्बान करते हैं, फिर उसकी जो खाल है, चाहे वो गाय हो, बैल हो, बकरा हो, ऊँट हो, उनकी खाले जो है वो दावत इस्लामी को देते हैं, और दावत इस्लामी जो है वो पॉइंट से वो खाले कलेक्ट करने के बाद मुख्तलिफ सुजुकियों और ट्रकों में डाल कर जमा करने के बाद सराय मदीना जो कि टूल प्लाजा पे इनका मरकज़ है वहाँ पर पहुँचाई जाती है। फिर उसके बाद इसका जो आगे का अमल है जो है वो उसको नमक लगा के सुखाया जाता है, और फिर उसके बाद उसकी सफाई और धुलाई की जाती है, और फिर उसके बाद उसको कारखाने मुंतकिल किया जाता है। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ DIG ईस्ट ने शोहदा की फैमिली से मुलाकात की। कहते हैं शोहदा की फैमिली और इनके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं। गुलाम असफर महिसर ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क को ईद की मुबारकबाद दी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी DIG गुलाम असफर महिसर के साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। की बड़ी खुशियां हैं और इस वक्त हम DIG ईस्ट गुलाम असफर महिसर साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि अपने SHOs, DSPs और उससे बड़ी बात जो पुलिस एहलकार जो शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिलीज़ हैं। असफर महिसर साहब आज ईद के पहले रोज़ वक्त निकाल कर शहीद की फैमिली के पास ऑफिस आए। शहीद की जो फैमिली है, खातून जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी अहलिया भी, उनके बेटा, उनकी बेटी मौजूद है। असफर महिसर साहब, एक ईद का पहला दिन है, हमारे चैनल की जानिब से आपको ईद मुबारक। आप यहाँ पर आए हैं, आप अपने जो SHOs हैं, शहीद की फैमिली की जो अहले खाना है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या पैगाम देंगे, किस तरीके से ईस्ट जोन में पेट्रोलिंग को पुलिस ने आज बरकरार रखा हुआ है? सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी आपको, आपके चैनल के लोगों को सबको ईद मुबारक, और इस जोन में और कराची में फिर पूरे पाकिस्तान के लोगों को ईद मुबारक। ईद का दिन हमारा डिफरेंट होता है बाकी लोगों से, क्योंकि हमारी ज़िम्मेवारी है, इस वक्त कुर्बानियाँ हो रही हैं और लोग जो है वो एक फेस्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये नहीं है कि हमने ईद की नमाज़ पढ़ा ली और उसके बाद गाफिल हो जाएं। तो हम इसमें फिर शिफ्टिंग बनाते हैं अपनी, जिसमें कुछ लोग जिन्होंने रात को ड्यूटी की है वो थोड़ा ऑफ़ लेंगे, और कुछ लोग फिर शाम तक जो है ड्यूटी करेंगे, फिर रात को ऑफ़ लेंगे। तो उसी को मॉनिटर करने के लिए और प्लस में जो ऑफिशल्स यहाँ पे हैं उनसे ईद मिलने के लिए हमने टाइमिंग्स रखी हुई है, कि बजाय इसके कि वो मुझे ढूंढते रहें, मैं उनके लिए अवेलेबल हो गया हूँ, ताकि जिसने ईद मिलनी है वो ईद आके मिल ले। गुलाम असफर महिसर साहब जो है वो उनका जो विजन है वो ये कहते हैं कि जूनियर अगर एहलकार जो हैं वो अगर ड्यूटीज़ पर हैं तो सीनियर जिस तरह DIG साहब सबको साथ लेके चलते हैं, मौजूद है, और शहीद की फैमिली भी ज़रा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कैसा लगा DIG साहब आए, आपसे मिले, आपकी फैमिली यहाँ मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और असफर महिसर साहब जो है वो पहली दफ़ा नहीं मिल रहे, वो हमारे घर पे भी आके हमारे लिए पूछते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं हर तरह से, और यहाँ पर भी हम उनसे मिलते हैं। हमारी तो रोज़ की खैर मुलाकात है, लेकिन ये है कि मुझसे तो मिलते हैं, मुझसे हाल अहवाल बच्चों के हवाले से हर तरह से पूछते हैं। माशाल्लाह से घर पे आकर भी मुझसे पूछते हैं, बाकायदा जायज़ा लेते हैं, मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं है, तालीम के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से माशाल्लाह हमारा बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। किसी कोई ऐसा त्यौहार नहीं गुजरता कि हम ये महसूस करें कि हम अकेले हैं। बिल्कुल, ये वो शहीद की फैमिली है और यहाँ पर मौजूद है। DIG साहब खुद आए हैं, इनसे मुलाकात की है, इनके बच्चों से मुलाकात की है,
अपने बच्चों की तरह इनको ट्रीट किया है। और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर SHOs भी मौजूद हैं जिनसे DIG साहब मिलेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 से ज़ायद एहलकार सिर्फ तैनात किए गए हैं ताकि जराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ जो अलाइशें फेंक कर चले जाते हैं जिससे शहरियों को मुश्किलात होता है, तो उसके लिए भी जो है वो ईस्ट जोन पुलिस जो है वो उसकी पिकेटिंग मौजूद है ताकि जराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ जो शहरियों को मसाइल हैं उनके हल के लिए भी जो है वो ईस्ट जोन पुलिस सड़कों पर मौजूद है।